Welcome back students, standard 9th and 10th maths, chapter 15 probability, and this is the 6th session. Alright, I've taken some sums, extra sums from former state board textbook. Okay, fine. So let's see the first one. A box contains 100 cards marked with numbers 1 to 100. So there is a box. In that there are 100 cards of similar type. On each card the numbers are written from 1 to 100. Okay. 1 on first card, 2 on second card, 3 on third card, and so on. If one card is drawn from the box, so that is the experiment, drawing one card from the box, find the probability that it bears first event, single digit number, second event, 2 digit numbers, third event, 3 digit numbers, fourth event, a number divisible by 8. A number divisible by 8 is also called multiple of 8, इसलिए मैंने यहाँ लिखा. Next was a multiple of 9, लेकिन मैंने चेंज कर दिया क्योंकि ये लास्ट 3 सम सिमिलर है. मल्टीपल ऑफ 9 नहीं, मैंने कर दिया मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5. लास्ट वाज मल्टीपल ऑफ 5, मैंने कैंसिल कर दिया. अ प्राइम नंबर, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 9 और मल्टीपल ऑफ 5 वो सिमिलर सम्स हो जाते, इसलिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया. सो फोर्थ वन इज अ नंबर डिविजिबल बाय 8 विच मीन्स मल्टीपल ऑफ 8. फिफ्थ वन अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5. ओके, and fifth, actually this will be sixth. All right, sixth one is a prime number. All right children, now we have 100 cards. All right, 100 cards. There's no need to write all 100 numbers, you know. So total observations is or total outcomes is 100. लेकिन सिंगल डिजिट के नंबर, सिंगल डिजिट नंबर्स कौन से है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. सो टोटल 9 नंबर्स है. ओके, देन 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स, देन 3 डिजिट नंबर्स. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले मैं 3 डिजिट नंबर ले लूं, एक ही नंबर है 100, सो 3 डिजिट नंबर इज ओनली 100. ओके, सिंगल डिजिट 9 प्लस 3 डिजिट 1, सो टोटल 10, और टोटल नंबर्स 100 है. 100 में से 10 निकाल दो, सो 90. सो दोज आर 2 डिजिट नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 11 till 99. आर यू गेटिंग मी चिल्ड्रन? सो सिंगल डिजिट नंबर्स आर 9, 2 digits numbers will be 90, and 1 digit number will be 1, that is 100. all right, now first 6 है तो 6 क्या इवेंट्स लिखना पड़ेगा. तो हम कैसे लिखते हैं देखो, इन वन सेंटेंस. सपोज इवेंट्स, फर्स्ट के लिए ए, सेकंड के लिए बी, थर्ड के लिए सी, फोर्थ के लिए डी, फिफ्थ के लिए ई और सिक्स्थ के लिए एफ. लेट ए बी सी डी ई एंड एफ बी इवेंट्स. ओके, ये निकाल दो. सपोज ए बी सी डी ई एफ बी इवेंट्स. ऑलराइट, इन विच फर्स्ट ए, a single digit number in which a number drawn is a single digit number, comma, is a 2 digit number, comma, is a 3 digit number, comma, is a number divisible by 8, comma, is a multiple of 3 and 5, and this and all right, a prime number. That's it. अब पहले का लिख लीजिए. Now probability of event A is
number of favorable outcomes upon total number of outcomes. Children, box में कितने cards है? 100, numbered from 1 to 100. So total outcomes are 100 और favorable outcome. Now event A क्या है? Single digit. Single digit numbers कितने हैं? 9. So 9. So that is equal to 0.09. That is probability of event A. Similarly, children, probability of event B. Total outcomes आपको पता है 100. Event B क्या है? 2 digit number. 2 digits number कितने हैं? 90. You may cancel 0 and then this is 0.9. फिर probability of event C. Event C क्या है? 3 digit number. 3 digit number तो सिर्फ 1 है upon 100. So that is 0.01. Alright. Probability of event D. Whole upon 100. अब D event क्या है? A multiple of 8 और number which is divisible by 8. बोलिए, अब आपको पता लगाना पड़ेगा. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 8 ऐड करते जाओ 40, 40 plus 8 48 plus 8 56 plus 8 64 plus 8 72 plus 8 80 plus 8 88 plus 8 96 और प्लस 8 करने जाएंगे तो 104 वो बढ़ गया. करेक्ट. सो दीज आर द नंबर्स between from 1 to 100 and which are multiple of 8. Gin lo now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 are the favorable outcomes. So you have 0.12. All right. And finally नहीं, अभी और एक इवेंट, 2 इवेंट बाकी है. सो P of E. E क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 and 5. You want multiple of 3 and also 5. 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. सो क्या आंसर आया? 15. सो यू नीड मल्टीपल ऑफ 15. 15, 30, 45, 60, 75, 90. मल्टीपल्स ऑफ 15. 90 के बाद नहीं आएगा. ऑलराइट. सो कितने आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6. So favorable outcomes are 6 upon 100. So that is 0.06. And the last one, probability of event F. Total outcomes तो 100 है. और वो क्या है? Prime numbers. Children, do you know the prime numbers? Which are the prime numbers? 1 is not 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97. ये है all prime numbers. काउंट करो from 1 to 100. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25. So 25 are favorable outcomes. You can put the decimal 0.25. So probability of event F is 0.25. I hope you have understood, children. All right. Proceeding further. Number 2 from that state board book. Okay. Let's see. Now marks obtained by 50 students. All right. In a test, some test from 100 marks. Total 50 students and out of 100. See, the detail is given in the tabular form. 0 to 34 marks score करने वाले 8 students. Marks scored from 35 to 50, there are 9 students. There are 14 students who scored marks from 51 to 70. 11 students scored marks from 71 to 90. And 8 students scored marks from 91 to 100.
Exactly what marks are scored is not known. The range are given. All right. Find the probability that student gets first below 35, second between 71 and 90, third more than 70, fourth less than or equal to 50, and fifth above 90. So 5 है. So let इस बार E1, E2, E3, E4 and E5 be the events in which a student get, बोलो पहला below 35 marks, comma between 71 to 90 marks, comma more than 70 marks, comma less than or equal to 50 marks, ऐसे लिखा मैंने, and last one above 90 marks. लिख दिया एक ही लाइन में सारे. पहली इवेंट E1 है, उसकी फॉर्मूला लिखेंगे. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ, आई एम यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ऑलराइट, यू ऑल डोंट यूज दिस शॉर्ट फॉर्म्स प्लीज. चलिए, यहां ये स्टूडेंट्स है, 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने यहां दिया ही है. So 8 plus 9 plus 14 plus 11 plus 8, 50 students. Alright. So total outcomes are 50. Alright. Total number of outcomes are 50. अभी event कौन सी है? E1. E1 क्या है? Below 35. Yes. ये सारे स्टूडेंट यहां से, ये मार्क्स बिलो 35 है, 35 से कम मतलब 34, 33. कितने स्टूडेंट्स है? 8. सो फेवरेबल आउटकम्स आर 8. एक काम करिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दो. सो दैट इज 16 अपॉन 100 एंड दैट इज इक्वल टू 0.16. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1. अब वर्ड लिखेंगे सिमिलरली. सिमिलरली इवेंट E2. सिमिलरली probability of event E2 is equal to total outcomes, no doubt 50. Now event is 71 to 60. The 71 to 90. ये रहे 71 to 90 वाले 11 students. So 11 again multiply and divide by 2. So 22 upon 100, ये 100 बन गया. So 0.22. ठीक है. Then next event, probability of event E3 is equal to total outcomes, no doubt 50 students है, और इवेंट E3 है मोर देन 70. चिल्ड्रन यहां देखो, ये 70 तक का मार्क्स और ये सारे स्टूडेंट्स यहां से ये बाजू 11 प्लस 8, 19 स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 70. 70 टू 90 और 91 टू 100. सो ये 11 और 8 स्टूडेंट्स दे स्कोर्ड मोर देन 70 मार्क्स. So again multiply and divide by 2. So that is 38 upon 100. Now it's easy to convert into decimal form, 0.38. Yes, probability of event 4, E4. And what is event 4? Less than or equal to 50. ये रहा, ये 51 मार्क्स है. यहां से ये बाजू आप जाएंगे तो 50 और उससे लेस. 8 plus 9, 17 students upon 50. Multiply and divide by 2 कर दो. 34 upon 100. So that is 0.34. Why I am multiplying and dividing by 2? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा आसानी से 100 बन जाए इसलिए. And then you can put the decimal point easily. And the last one, probability of event 5. Total outcomes no doubt 50. And what is that? Above 90. 90 से ऊपर ये 90 से ऊपर 8 students. So 8 again multiply and divide by 2. 16 upon 100 and that is 0.16. So that is how you find the probability of this 5 events. Clear to you students? Good. Alright children, next 3 sums we are going to do from R.D. Sharma book. Alright, but before that, this is very important. This is calendar of 2020. वैसे तो 2020 साल मुझे याद नहीं रखना है. ओके, फिर भी ये एक लीप ईयर है. ऑलराइट, उसका पूरा कैलेंडर मैंने इस पेज पे ले लिया है. लीप ईयर, सो इट हैज 366 days. Children, now I want to know, you see this Sunday,
How many Sundays are there in January? 4. How many Mondays are there in January? Okay, first Sundays. Sundays यहाँ February is down here. February में 4 Sundays. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Sundays in the month of March. 1, 2, 3, 4, 4. 4 Sundays in the month of April. Now May. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Sundays in the month of May. So now 4. Then 4, 5 Sunday. 4, 4, 5 और 4. All right? तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मंथ्स के संडे है। वो तो हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं। टोटल डेज कितने हैं? 366। एक संडे कितने दिन में आता है? 7 डेज। आफ्टर एवरी 7 डेज you have Sunday, so you divide by 7. 7 5s are 35. 1 remains 6. 7 2s are 14. Children, so you have 52 weeks, क्योंकि एक वीक में 7 डेज और हर एक वीक में एक संडे आता है। सो 52 संडे तो पक्का। 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे। इसका टोटल ये 314 होगा। और ये 2 डेज जो बचाना चिल्ड्रन, वो आपको संडे और मंडे हो तो 53 होगा। मंडे और ट्यूसडे हो तो मंडे 53 होगा और ट्यूसडे 53 होगा। सो इन एवरी ईयर, ऑलराइट, 52 डेज, 52 संडेज, 52 मंडेज, 52 ट्यूसडेज, वेडनेसडेज, फ्राइडेज, ईच डे 52 टाइम्स पूरे साल में आता ही है। लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, सो 2 दिन बच जाते हैं। सो कोई भी 2 दिन, ऑफकोर्स वो सीक्वेंस में चलेगा, संडे मंडे या मंडे ट्यूसडे या ट्यूसडे वेडनेसडे या वेडनेसडे थर्सडे या थर्सडे फ्राइडे या फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे, वो 53 आएगा। ये 7 डेज में कोई भी 2 दिन, लीप ईयर में 53 आएगा, कोई भी 2 दिन। वो यदि लीप ईयर नहीं हो, नॉर्मल ईयर हो, ऑलराइट, देन डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 52 तो आएगा ही। 35, 1, 14, लेकिन एक ही दिन बचेगा। सो नॉर्मल ईयर में जो लीप ईयर नहीं है उसमें कोई भी एक दिन 53 आएगा पूरे साल में, बाकी के सब 52 डेज आएंगे। और लीप ईयर में कोई भी 2 दिन 53 होंगे, बाकी के 52 डेज होंगे। समझ में आया? नाउ लेट्स चेक इन 2020 कौन से 2 दिन, ये लीप ईयर है, 2020 इज अ लीप ईयर, सो इनमें से कोई भी 2 दिन 53 आने वाला है। सो पहले हम ये गिनती कर ले संडे की। 4 + 4 8 + 5 13 + 4 17 + 5 22 + 4 26 + 4 30 + 5 35 39 43 48 और 52। संडेज 52 ही है। ऑलराइट, चलिए अब मंडे की बारी। यहां कितने मंडे है? 1 2 3 4 मंडेज। पहले वो लिख लेते 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 मंडे, ये रहा मंडे। 4 5 4 5 मंडे, यहां 4 4 5 और 4। लेट्स काउंट टोटल नंबर ऑफ मंडेज नाउ। 4 + 4 8 + 5 13 + 4 17 + 4 21 + 5 26 30 35 39 43 48 और 52। मंडे भी 52 ही है। ऑलराइट, अब देखते हैं हाउ मेनी ट्यूसडेज आर देयर। जनवरी में 4 है, फरवरी में 4 है, मार्च में 5, ये 4 ट्यूसडेज। 4 5 4 4 ट्यूसडेज, यहां 5 4 4 और 5। चलिए टोटल करते हैं। 4 and 4 8 and 5 13 and 17 21 26 30 34 39 43 47 और 52। ट्यूसडेज भी 52 ही है। नाउ लेट्स सी वेडनेसडेज। वेडनेसडेज कितने हैं? 5, यहां 4, यहां 4 5
4 Wednesdays, 4, 5, 4 Wednesdays, 5, 4, 4 और 5. चलिए टोटल करते हैं कितने वेडनेसडेज. 5 and 4 9, 13 and 18 Wednesdays. 22, 26, 31, 35, 40, 44, 48 और 5 53. एक वेडनेसडे ज्यादा होगा. इन 2020 देयर आर 53 वेडनेसडेज. ऑलराइट, वेडनेसडेज कितने? 53. तो ऑब्वियसली वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है. ट्यूसडे 53 नहीं है, तो मतलब थर्सडेज भी 53 होना चाहिए. काउंट करते हैं थर्सडेज. यहां है 5, 4, 4, गिन टोटल करते ही जाते हैं. 5 + 4 9, 13, 13 + 5 18 थर्सडेज. 18 + 4 22, 22 + 4 26, 26 + 5 31, + 4 35, + 4 39, + 5 44, + 4 48 और +5 53. सो +1 एक दिन बढ़ गया थर्सडे. अब फ्राइडे सैटरडे 52 ही होगा. विल चेक. ओके, चलिए फ्राइडे कितने हैं? 5 + 4 9, + 4 13, + 4 17 फ्राइडेज, + 5 22, + 4 26, + 5 31, + 4 35 फ्राइडेज, + 4 39, + 5 44, + 4 48 और +4 52. देखो. ऑलराइट, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सैटरडेज. 4 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22 और 4 26 और 4 30 और 5 35 और 4 39, 39 और 5 44, 48 और 4 52. हो गया. मिल गया चिल्ड्रन. सो कोई भी 2 दिन लीप ईयर में 53 होंगे पूरे साल में और बाकी के 52. समझ में आए. और नॉर्मल ईयर हुआ, लीप ईयर नहीं, नॉर्मल ईयर हुआ तो ओनली 365 डेज. सो एक ही दिन बचेगा. यहां -1 हो जाएगा. सो यहां भी -1, एक ही दिन. सो एनी वन डे विल बी 53 in the year. Okay children, did you understand? So let us see next 3 sums from R.D. Sharma's book, and it is based on what we have just seen. All right children? Okay, fine. Let us see the third one. Find the probability that leap year selected at random will contain 53 Sundays. Children, one leap year is selected, लेकिन कौन सा वो तो हमें बताया नहीं. Some leap year. तो you know leap year has 366 days. आपको पता है. So divide by 7. 7 5s are 35, 1 6. 7 2s are 14 और remainder is 2. Alright, 2 दिन बचे हैं. अभी वो 2 दिन संडे हो या मंडे हो सकता है. एक एक्स्ट्रा 52 संडे. सी 52 संडेज, 52 मंडेज, 52 ट्यूसडेज, 52 वेडनेसडेज, 52 थर्सडेज, 52 फ्राइडेज और 52 सैटरडेज. वो तो है ही, लेकिन 2 दिन बचे. वो संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे संडे हो सकता है. फिर संडे मंडे वापस आ गया. सो कितनी टोटल आउटकम्स है? 7. टोटल आउटकम्स आर 7 चिल्ड्रन. ऑलराइट. और अब देखो 2 दिन है तो 2 आउटकम जिसमें संडे हो. ये रहा संडे और ये रहा संडे. सो दीज आर फेवरेबल आउटकम्स आउट ऑफ 7. टोटल आउटकम्स आर 7. फेवरेबल आउटकम्स आर 2, जिसमें संडे है 2. So yeah, probability is what? Probability of any event is favorable outcome 2 upon total outcome 7. Children, आपकी समझ में आया क्या? चलो, let E1, this is third one, so E बोलता हूं. Let E be the event
in which the year has 53 Sundays. Now, probability of event E is number of favorable outcomes upon total number of outcomes. फेवरेबल आउटकम्स 2 है. देखो दो ऐसे पेयर्स ऑफ डेज, 2 डेज में संडे आते हैं. इसमें 2 डेज में इतने आउटकम्स होंगे टोटली 7, उसमें से 2 दिन में संडे है, सो दैट इज 2 आउट ऑफ 7. चिल्ड्रन, यदि ये झंझट में नहीं पढ़ना हो तो आप जस्ट रिमाइंडर क्या आया या रिमाइंडर 2 आउट ऑफ 7, 2 आउट ऑफ 7, दैट इज द प्रोबेबिलिटी. ऑलराइट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज दिस. चलिए, नाउ नेक्स्ट विल सी 4th one. बी केयरफुल नाउ. नॉर्मल या ऑर्डिनरी ईयर है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडेज? चिल्ड्रन, अब ऑर्डिनरी ईयर है, सो यहां 365, सो यहां रिमाइंडर 1 आएगा, ये 15, सो 1 आएगा. सो यस, ये नहीं. अब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, फिर से संडे आएगा. एक ही दिन बचा तो एक ही दिन रखेंगे. तो टोटल आउटकम्स तो 7 है और फेवरेबल आउटकम जिसमें संडे हो एक ही है. सो हियर 1 आउट ऑफ 7. सो जो रिमाइंडर आया डिवाइड बाय 7, डायरेक्ट समझना हो तो. ऑलराइट, लेट ए बी द इवेंट इन विच द ईयर हैज 53 संडेज. लेकिन ये नॉर्मल संडेज की बात है. So now probability of event A is equal to, आप ये अलग अलग सम है, सो आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. फेवरेबल आउटकम इज 1 अपॉन टोटल आउटकम इज 7, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A. ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th one. ऑलराइट, what is the probability that leap year, now again it is a leap year, having 53 Sundays and 53 Mondays. Abhi dekho, we'll have to go back to this because it is leap year. So Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday और Saturday, Sunday. So total outcomes तो no doubt 7. लेकिन आपको 53 Sundays और Mondays, तो Sunday, Monday ये एक ही है. इसके बाद Sunday मिलेगा लेकिन Monday नहीं मिलेगा, या Monday है लेकिन इसमें Sunday नहीं है. So favorable outcome is only 1. Are you getting me? आपको लिखना है let B be the event in which the leap year, उसमें ordinary year लिखना, leap year has 53 Sundays and Mondays. Sunday और 52 तो है ही है, लेकिन Sunday और Monday 2 दिन में होगा, वो एक ही आउटकम है. So probability आपको वो लिखना है चिल्ड्रन, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, टोटल आउटकम 7 है, 1 2 3 4, लेकिन संडे और मंडे दोनों चाहिए, सो दैट इज 1. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन. ऑलराइट, सो दैट्स एंड ऑफ दिस सेशन. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, गुड बाय.